Assalamu alaikum to all of you. As we are waiting for the other participants, then we will start this webinar. Okay. Okay, now we are going to start our today's webinar. So, our today's webinar is on cyber security awareness. Okay, if participants, if you want to open your cameras, then you can. Okay. So, the webinar's agenda over here is what is cybersecurity, why we are using cybersecurity, goal of cybersecurity, measures to protect digital system network and data from cyber threats. So first we have to know that what is cybersecurity. As you all know that we are packed in a digital era and all of our gadgets are packed in a digital system. So we have to be concerned about our security as well. So cybersecurity is the protection to define internet connected system, networks and programs from digital attacks by hackers, spammers and cyber criminals. So basically जो हमारा मेजर कंसर्न है इधर जैसे कि हम एक डिजिटल सिस्टम में रह रहे हैं तो वी आर नॉट सिक्योर एट ऑल. We are digitally packed over there. Our all gadgets are packed in with the internet over there, so we are not secure at all. Okay, so the need of cybersecurity is very concerned about there. So the next thing is why we are using cybersecurity. So there are some purposes that we are going to discuss over here that we are why we are using cybersecurity. So the first one is data protection. अब आप डेटा को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज प्रिवेंट्स अनऑथराइज एक्सेस कि जो आपका एक्सेस है वो आपके पास ही रहना चाहिए. सपोज आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, आपका ईमेल एड्रेस, आपके जितने क्रेडेंशियल्स हैं वो सारे आपके प्रोटेक्ट होने चाहिए, वो कोई और बंदा उसको एक्सेस ना करे. ठीक है. इंश्योर्स डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी. इसमें ये है आपके पास कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स के व्हेन टू सिस्टम इज कम्युनिकेटिंग थ्रू इंटरनेट their message must be secure, that no third person can intake that or hack that. It must be secure. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज थ्रेट प्रिवेंशंस. अब थ्रेट में आपके पास कौन कौन से थ्रेट्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास मालवेयर्स होते हैं. मालवेयर्स में आपके पास वायरसेस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं और वो सारे पॉपअप्स होते हैं. आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि आप किसी भी चीज़ को सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे तो साइड पे एक एड्स आ रही होती हैं. तो these all are malwares. These are the unsourceable viruses that enter in your system. Then we are having ransomwares. This is also a type of malware over here. And then we having a phishing. We will discuss is in this webinar later. Now the third thing is personal privacy. So personal privacy includes shields online activities, protect sensitive personal information. So sensitive information means again your first name, your second name, your number, your email address, all these concerned over there. So we have to learn about the cyber security. That is very important, and we have to secure our software as well to identify the threats and to solve and prevent that crimes. Now, nextly, we are having goals of cybersecurity. That what are the goals of cybersecurity over here? So the first one is protect the confidentiality of a data. Again, the confidentiality means that when two system is communicating through internet, their messages must be secure, that no third person can interrupt or hack that data. Now the second one is preserve the integrity of data. Integrity means that when two persons are communicating and I am sending my message to another system, that must be integrity over there. In that case, integrity means there is no modification of data.
कि सपोज अगर मैंने हेलो सेंड किया है तो दूसरे सिस्टम पे हेलो ही रिसीव होना चाहिए, हेलो के अलावा कोई और चीज रिसीव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन वी आर हैविंग प्रमोट द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा फ्रॉम ऑथराइज्ड यूजर। अवेलेबिलिटी मींस के सपोज मैंने अपने किसी भी सिस्टम को एक्सेस करना है, ठीक है, मैंने अब सपोज यूनिवर्सिटी वेबसाइट को अपने लॉगिन करना है, ठीक है, मैं रोज आना डेली उसको लॉगिन कर रही हूँ और वो लॉगिन होता है, मगर किसी दिन ऐसा होता है कि मैं उसे लॉगिन करती हूँ तो वो मेरे पास एक एरर दे देता है कि इनवैलिड यूजर है। इनवैलिड यूजर वो मुझे क्यों कह रहा है, क्योंकि वहां पे हमारा सिस्टम हैक हो गया है। क्योंकि एक सिस्टम को हम रोज आना ऑपरेट कर रहे हैं, मैं रोज आना उसे लॉग इन कर रही हूँ, सडनली एक दिन वो मेरा सिस्टम मुझे कहता है कि दैट इज एन इनवैलिड यूजर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि आप जो पर्सन की अवेलेबिलिटी होती है वो लूज हो जाती है वहां से, क्योंकि हमारा सिस्टम हैक हो जाता है। सो दीज गोल्स फ्रॉम द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, दैट इज CIA. Now nextly what we are having, how hackers get our stuff. There are two main ways over there. We give it to them, or someone or something you trust give it to them. What does it mean? Definitely we are not supposed to give it to them directly over there. ऑब्वियसली अननोइंगली ही हम किसी चीज को या किसी बंदे को अपना डाटा हैंड ओवर कर रहे हैं, ठीक है। कोई डायरेक्टली तो अपना डाटा नहीं ना हैंड ओवर करता, डिफरेंट वेज होते हैं जो हैकर्स आपको डिफरेंट तरीके से ट्रैप करते हैं कि आप अपनी जो डिटेल्स होते हैं, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो आप शेयर कर देते हैं दूसरे बंदे के साथ। सो वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू दैट वन बाय वन, दैट हाउ हैकर्स कंट्रोल आर सेल्फ day to day. So your identity, your password, your bank's details, all your credentials are very much important. Now next what we are having over here, we are having a social engineering over here. What does it means? The art of manipulating, influencing, or deceiving you in order to gain control over your computer system. It involves psychological manipulation and exploits human error or weaknesses rather than technical or digital system. They trick individually into revealing password or personal details. It is sometimes called human hacking. अब ये hacking किस तरह से होती है? अब साइकोलॉजिकली कैसे मैनिपुलेट किया जाता है? सपोज करें कि मैं आपको फोन करती हूँ, मैं किसी भी बंदे को फोन करती हूँ एंड दैट कॉल इज कंप्यूटर जनरेटेड, दैट इज नॉट एन एक्चुअल कॉल। मैं अपने एक सिस्टम से बैठ के किसी बंदे को कॉल करती हूँ और मैं उसको कहती हूँ कि मैं आपके बैंक से बात कर रही हूँ, ठीक है, और आपके आपने उस बैंक का नंबर भी अपने फोन में सेफ रखा हुआ है, ठीक है। आपने जब सेफ नंबर रखा हुआ है, जब मैं कॉल मिलाऊंगी तो आपके नंबर, जो आपका सेफ नंबर है, वो आपके फोन पे डिस्प्ले हो रहा होगा कि ये बैंक की ही तरफ से आपको कॉल आ रही है। 1% का भी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। जब आप ये चीज देखेंगे तो आप समझेंगे कि बैंक ही आपको कॉल कर रहा है, बैंक का कोई एम्प्लॉय आपसे बात करना चाह रहा है। फिर वो आपसे क्या कहता है, वो आपको कॉल करता है, हेलो मैम, आर यू देयर, आपसे अस्सलाम वालेकुम करता है, आप वालेकुम अस्सलाम करते हैं। देन अब आप देखें, दीज गाइज आर वेरी स्मार्ट। वो आपसे ये कहेगा कि I just want to confirm that whether I am talking to Ma'am Khatija Nasir, I am saying yes, you are talking to the correct person. Then, then they are going to say you that you are from that city because they collect our information from the social media website. अब देखिए, सारे जो डिटेल्स होती हैं ना हमारी, हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। हमारी सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से कोई भी ग्रैब कर सकता है। that is very easy for the hackers to grab everything from there. तो क्या होता है कि वो आपका जो ट्रस्ट होता है वो गेन कर लेता है। जब वो गेन करता है तो उसके लिए बड़ा इजी रहता है कि वो आपको मैनिपुलेट कर सके। वो साइकोलॉजिकली उन्होंने आपको ट्रैप कर लेता है। हमें भी ट्रस्ट हो जाता है कि दे नो माय नेम, दे नो वेयर आई एम लिविंग, सो डेफिनेटली दैट कॉल इज फ्रॉम द बैंक, ठीक है। तो दैट इज अ सोशल इंजीनियरिंग ओवर देयर, दैट इज अ सोर्स ऑफ मैनिपुलेशन, दैट इज अ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन over there. Now the next thing is how to secure ourselves from cyber attack. So for before going to that, I just want to discuss something over there. Suppose we want to download something and we went to a website. At that website they are asking you that fill up your details to download something, anything you want to download, your software, your report, anything you want to download. They just want to know, they just asking you that you have to write your first name, your second name, your email address, and your phone number, everything over there.
because they are, I am again saying, they are so smart guys. They know how to trap you. तो फिर क्या होता है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर, आपने देखा होगा कि हम जब कोई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करने लगते हैं ना, तो हमें वहां पे एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसको क्या करें, कि आप इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना यूजर नेम डालना है, आपको अपना ईमेल डालना है, आपको आपका नंबर डालना है, देन ये डाउनलोड होगा। ठीक है, तो वो आपसे ना बेसिकली आपको साइकोलॉजिकली ट्रैप कर रहे होते हैं कि किस तरह से हमने इनको अटैक करना है। तो क्या होता है कि जब हम अपना ईमेल उस पे डालते हैं, हम उसका नंबर उसमें पुट करते हैं, तो हमारी जो सारी डिटेल्स होती हैं उन तक चली जाती है। अब बात ये है कि हम किस तरीके से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं इन सारे क्राइम्स से। So how we are going to deal with them? There are some tips that we are going to follow over there. अब मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीज नहीं पता होगी कि हम एक डिस्पोजल ईमेल भी क्रिएट कर सकते हैं। वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, आई विल टेल यू हियर। आपने करना क्या है, यू विल गो टू गूगल एंड सर्च द डिस्पोजल ईमेल देयर। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू पीपल आर गोइंग टू डू दैट। Here I am stop sharing my screen because I have to show you something that how we are going to use these disposal email. अच्छा, इसमें आपने ये करना है, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग एज इन डिटेल, कि आपने पहले गूगल पे जाना है, वहां पे आपने सर्च करना है डिस्पोजल ईमेल्स को। जब आप डिस्पोजल ईमेल्स को सर्च करेंगे तो एक लिस्ट आपके सामने आएगी। उस लिस्ट में से आपने कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपको एक टेम्परेरी ईमेल आईडी गेट होगी वहां पे। दैट इज फॉर योर ईमेल आईडी। जिस तरह हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं ना, दे आर आस्किंग अस के you have to put your details over there, your email id and all these things। तो उससे सिक्योर रहने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक डिस्पोजल ईमेल लेना है, और वो हमें नेट से इजीली अवेलेबिलिटी में मिल जाता है। दैट इज योर टेम्परेरी ईमेल आईडी। और आपसे मैं एक और इम्पोर्टेंट नोट जो यहाँ पे डिस्कस करूंगी, कि जो आप टेम्परेरी ईमेल आईडी लेंगे, डोंट यूज दैट थिंग फॉर योर बैंकिंग साइट, फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल अदर ऑथेंटिक साइट। जैसे आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, you are not supposed to use that email over there, because that is only for the temporary purposes. Now, the next step is, after getting temporary emails, they are asking you that you have to click on the activation link. आपने देखा होगा कि जब आपको कोई ईमेल की बात की जाती है, वहां पे आपको वो कहते हैं कि आपके पास एक एक्टिवेशन लिंक आया होगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसीड होगी टू डाउनलोड एनीथिंग। उसमें हम क्या करते हैं कि एक्टिवेशन लिंक्स जो होते हैं, उसे आपने क्लिक करना है, और जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है, आपने उसी पे जाके क्लिक करना है, तो वहां से इजीली you can get what you want over there। जब आप डाउनलोड करने के लिए उस लिंक को एक्टिवेट करेंगे, उसी मेल पे आपको एक और मेल रिसीव होगी। वहां पे वो आपको ये कहेंगे कि इस लिंक को, एक्टिवेशन लिंक को क्लिक करें। जब आप क्लिक कर देते हैं तो वो आपको वहां से एक और मैसेज आएगा। वो नेक्स्ट आपसे, एज आई टोल्ड यू, दीज आर वेरी स्मार्ट गाइज, वो आपको नेक्स्टली ये कहेंगे कि आप अपना जो नंबर है वो उधर डालें, अपना नंबर जो है वो उधर पुट करें। तो उससे ये होगा कि दे आर सेइंग यू दैट वी आर गोइंग टू सेंड यू द ओटीपी ओवर देयर, दैट इज अ वन टाइम पासवर्ड ओवर देयर। उसमें भी क्या होगा कि आपके पास जो नंबर होगा उसे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे एक्सेस करना है। आप टेम्परेरी नंबर भी गेट कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, तो आपको मैं अगेन ये कहूंगी, यू आर नॉट सपोज टू यूज दैट नंबर्स फॉर योर बैंकिंग साइट एंड अदर ऑथेंटिक साइट्स। ओके, these are the temporary numbers, you are not supposed to use that for a government purposes or any other authentic purposes। So tips to secure yourself from cyber attack is, do not open any link that originate from your social media website, first thing। And the second thing is, when you got any email from some unknown website, you are not supposed to click that। आप जब उन emails को click कर देते हैं ना, जैसे ही आप उन emails को click करते हैं ना, तो आपकी जो सारी डिटेल्स होती हैं वो शेयर हो जाती हैं दूसरे सिस्टम पे, जो आपको हैकिंग के एक सोर्स होता है, एक थ्रेड भेज रहा होता है उस पे। अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है एक फिशिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग इज आल्सो नोन एज सोशल इंजीनियरिंग अटैक। इट इज अ मेथड ऑफ स्टेलिंग यूजर इंफॉर्मेशन such as login information and credit card information। A phishing attack happens when an attacker pretend to be a trustworthy person, pretending to be a someone they can trust by sending an email, an instant message, or a text message to a victim। The victim click on a phishing link which install malware, freezes
the system in a ransomware attack or expose this the sensitive information. अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास कैसे फिशिंग होती है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कोई भी अननोन कॉल की जा सकती है और वो कंप्यूटर जनरेटेड ही होगी। इनका बेसिकली ना एक पूरा पैनल होता है। आप सपोज करें आपको बैंक से कॉल आई है, अभी लास्ट टाइम एक ऐसी चीज़ चल रही थी कि वो दे आर सेइंग दैट वी आर फ्रॉम एफआईए और वो कॉल करके कहते हैं एक बंदे को कि आप अपने ना जो डिटेल्स हैं वो शेयर करें और अपनी बैंक की डिटेल्स भी शेयर करें सारी। तो वो बंदा उस आगे से ये रिस्पॉन्ड करता है कि आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनीथिंग विद यू। तो वो कहते हैं कि वेरिफिकेशन हो रही है, अगर आपने उस चीज़ को ना प्रोसीड किया तो एफआईए वाले आपके साथ ये करेंगे या वो करेंगे, मतलब दे आर जस्ट अब्यूजिंग इन एन अल्टरनेटिव वे, थ्रेट्स देना किसी को। जब उसने नंबर अपने आप को पता है कि आपने कॉलर आईडी किया होता है जिसमें आपके नंबर्स ट्रैक हो जाते हैं, कहीं से भी कोई भी कॉल आ रही है तो आपको पता चल जाता है ये कॉल कहाँ से आ रही है। वहाँ पे जब उस बंदे ने सर्च किया तो वहाँ पे वो सेम नंबर आ रहा था। उसका थोड़ा-सा ट्रस्ट डेवलप हुआ कि हाँ, जो बंदा मुझे कॉल कर रहा है वो सही सही सोर्स से मुझे कॉल कर रहा है। उसके बाद ये होता है कि वो जब अपनी डिटेल्स शेयर कर देता है और ओटीपी जब उसके पास रिसीव होता है, वो ओटीपी भी शेयर कर देता है, तो विद इन 2 टू 3 मिनट्स उसके अकाउंट्स की जितना भी अमाउंट होती है, वो सारी वैनिश हो जाती है वहाँ से। मतलब वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसी और सोर्स में। तो कहने का ये कंटेंट है कि यहाँ पे जो अभी वॉइस फिशिंग का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगी कि उसमें बेसिकली है क्या, कि जब भी आपके पास ये उस तरह का अटैक होता है कि टेलीफ़ोनिकली यूज़ होता है, वॉइस सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब आपको इस तरह से ट्रिगर किया जाता है कि आप अपनी सारा जो सेंसिटिव डाटा होते हैं, वो एक अनऑथराइज़ अ, एंटिटीज़ जो होती हैं उसमें आप अपना डाटा दे देते हैं। दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। ठीक है? सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट यूजेस वॉइस एंड टेलीफोनी नेट टेक्नोलॉजीज़ टू ट्रिक टारगेट इंडिविजुअल इंटू रिवीलिंग सेंसिटिव डाटा टू अनऑथराइज्ड एंटिटीज़। सो आप इसमें बहुत केयरफुल रहने वाली चीज़ें होती हैं क्योंकि जो फिशर्स होते हैं दे आर वेरी गुड एक्टर्स। अब वो आपसे जैसे कह रहे हैं कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ या मैं आपके किसी गवर्नमेंट सेक्टर से बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ, मैं कस्टम से बात कर रहा हूँ, कि ये आपका जो ट्रस्ट होता है वो गेन कर लेते हैं। तो आपका इससे सिक्योर रहने के लिए एक बेटर वे है कि आप जब भी आपको कॉल आती है, डोंट सेंड एनीथिंग ऑनलाइन और टेलीफोनिकली, फर्स्ट कन्फर्म दैट। कभी भी कोई चीज़ आप ऐसे ना सेंड करें जहाँ से आपको कॉल आई है, पहले तो ये जब कॉल आपको रिसीव हुई है आप उस कॉल को एंड करें। एंड करने के बाद जो आपका डायलर है, उस डायलर से आपने नंबर डायल करना है, आपने उसको रीडायल नहीं करना, कॉल बैक बिल्कुल नहीं करनी। क्योंकि ये सारे एक ऑटो जनरेटेड नंबर्स होते हैं, ये सारे कंप्यूटराइज़्ड नंबर होते हैं। जब आप कॉल बैक करते हैं तो उसी बंदे को दोबारा लग जाता है जो आपको आपके साथ स्कैम करने के उसमें ट्रिगर में होता है कि आई वांट टू टारगेट दैट पर्सन। तो इसमें आपने ये करना होता है कि आपने रीडायल कभी भी नहीं करना नंबर को। आपने हमेशा जो आपके पास नंबर है, जो आपके पास आपको लग रहा है कि ये एक ऑथेंटिक नंबर से कॉल आ रही है और आपके पास सेफ भी है, तो आप अपने डायलर से उसको डायल करेंगे। आप उसको रीडायल नहीं करेंगे, आपने डायलर से डायल करना है। आपने कन्फर्म करना है कि जो पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो वही है जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन चल रही है या नहीं। Then we are having a concept of smishing over there. So smishing is basically a sort of SMS. अब इसमें क्या होता है कि जो आपके this is a sort of cyber attack. अब आपके पास कुछ SMS आते होंगे, so I will explain that first. It refers to a cyber attack in which attackers send the text messages to individual with the aim of tricking them into revealing sensitive information, clicking on malicious link or downloading the malicious attachments. These text messages often appear to form legitimate sources such as banks, government agencies, or well known companies. The goal of smishing attack is to manipulate recipients into taking action that compromises their personal information, financial details, or security. अब इसमें क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपको टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव होते हैं जहां पे दे आर आस्किंग कि यू आर गोइंग टू डाउनलोड दैट आर गोइंग टू डाउनलोड दैट लिंक। अब इसमें आपके पास क्या होता है कि आप इससे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि जब भी आपके पास कोई भी ऐसे मैसेजेस आते हैं ना जो कि आपको लग रहा है कि ये कोई सस्पिशियस मैसेजेस हैं और साथ में आप देखेंगे कि एक लिंक भी जनरेट होता है वहां पे कि इस लिंक को आप क्लिक करें और इस लिंक के थ्रू आप इस ऐप को डाउनलोड करें। सो व्हाई वी आर डाउनलोडिंग दैट लिंक फ्रॉम दैट साइट, व्हाई वी नॉट गो फॉर आवर ऐप स्टोर एंड वी आर गोइंग टू गेट दैट ईमेल फ्रॉम देयर। सो सपोज करें ये मेरे पास एक
एक मैसेजेस हैं जो अक्सर मुझे रिसीव होते हैं यू पैसा की तरफ से। इसमें आपके पास ये होता है, उसमें आपके पास ये होता है कि आपके पास मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं, ठीक है। वहां पे एक लिंक भी आपको गिवन होता है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि इस ऐप को डाउनलोड करें। अब आप क्यों हम इस ऐप को यहाँ से डाउनलोड करें? आपने यहाँ से जैसे ही इसको क्लिक किया ना, आपकी जो सारा इंफॉर्मेशन, आपका सारा डेटा, आपका जो गैजेट है वो हैक्ड हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर दीज थिंग्स इन योर माइंड वेन एवर यू गॉट दीज काइंड ऑफ मैसेजेस। डोंट एवर क्लिक ऑन दीज लिंक्स, because these are not the safe sites. These are literally not the safe sites. So you are not supposed to click on that links. आपके पास लिंक्स आ रहे हैं, आप उसको छोड़ दें। अगर आपको कोई क्यूरीज हैं या आपको कोई मैसेजेस आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, तो डायरेक्टली यू आर गोइंग टू कॉन्टेक्ट द ऑथेंटिक सोर्स। आपके पास यू पैसा के बहुत से ऐसे कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं जहां से आप डायरेक्टली उसकी फ्रेंचाइज पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये ऑफर्स हैं या नहीं है। सो इस तरह के कोई भी आपको मैसेजेस टेक्स्ट पे रिसीव होते हैं, डोंट एवर क्लिक ऑन दैट लिंक्स। दीज आर very much scary, very much. So we are having a scareware over here. So, what are scarewares? So, scarewares is a cyber attack tactic that scares people into visiting spoofed or infected website or downloading malicious softwares. Scarewares can come in the form of pop-up ads that appear on a user computer or spread through email attacks as well. आपने देखा होगा कि जब आप कोई चीज ओपन करते हैं, सपोज हम कोई यूट्यूब भी ओपन कर रहे हैं, तो हमारे वहां पे साइट्स में एड्स चल रहे होते हैं और एड्स को अक्सर हम स्किप भी कर देते हैं, और सपोज हम एड्स देख भी रहे हैं तो दैट इज ओके। मगर उसके साइड पे अगर एक आप पॉपअप देखें तो वहां पे आपको वो एक एंट्री दे रहे होते हैं कि यू आर गोइंग टू क्लिक दैट, या आपको मैसेज आ रहा होता है कि योर सिस्टम इज सो मच वायरस पोल्यूटेड, यू हैव टू इंस्टॉल द एंटी वायरस ओवर देयर। तो आपने उन लिंक्स को बिल्कुल भी कभी भी क्लिक नहीं करना। वो एड्स जो होती हैं वो एक टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं, दैट आर मालवर्स, जो आपके सिस्टम को ट्रैप करने के लिए बेसिकली यूज किए जा रहे होते हैं। तो आपने उन साइट्स को या उन पॉपअप्स को बिल्कुल भी कभी भी क्लिक नहीं करना। आप ऑथेंटिक वेबसाइट सोर्स देखें, आप वहां से अपना जो एंटीवायरस अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वहां से आप डाउनलोड करें, रादर देन कि आप उन पॉपअप साइट्स को क्लिक करें। Next, we are having to protect yourself against potential scareware, slide, or any form of manipulation. We follow these. Be skeptical. Avoid clicking on the links. Avoid clicking on the links. Verify the source. Use a reliable security software and keep the software updated. हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को आप अपडेट रखें. Then we are having a email spoofing. अब email spoofing क्या होती है? This is also a threat that involves sending email messages with a fake sender address. कि आप कोई भी सोर्स यूज करके फेक ईमेल एड्रेस को वहां से जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट होगा, कैसे ये वर्क करते हैं? दे गो टू द गूगल and search the anonymous mailer over there. Then the list open, then they select the first option there. Any option you can select over there to get the prank email or an alternative email, कि हम किसी को भी कोई भी ईमेल जो है वो सेंड कर सकते हैं। दिस इज वेरी क्वाइट पॉसिबल कि आप कोई भी ईमेल लें और आप उसको जनरेट कर सकते हैं। अब ये देखें कि हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट दैट। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, कि हम किस तरीके से उसको जनरेट कर सकते हैं। और मैं नंबर का भी आपको बता दूं कि आप जो अल्टरनेटिव नंबर है वो किस तरह से ले सकते हैं। आई एम गोइंग टू टेल दिस एज वेल। हियर वी आर हैविंग दिस सोर्स, रिसीव एसएमएस। ठीक है, ये वो सोर्स है जहां से आप ऑल्टरनेटिव नंबर्स कलेक्ट कर सकते हैं, जहां से वो आपको कहते हैं ना कि हम ओटीपी आपको सेंड कर देते हैं। सो आई एम सेलेक्टिंग दैट वन। ठीक है, अब आप देखिए मैंने इसे सेलेक्ट किया, मेरे पास डिफरेंट कंट्रीज आ गए यहाँ पे, ये देखें डिफरेंट कंट्रीज आ गए। आप इस कंट्री में से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लें जहां से आपको ओटीपी रिसीव होगा। जैसे ही आपको ओटीपी रिसीव होता है आप वहां पे सेंड कर दें जहां से आप डाउनलोड करना चाह रहे थे रिस्पेक्टिव चीज को। ठीक है, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे नंबर मेरे पास जनरेट हो गया है एक ये वाला। ठीक है, दिस इज फ्रॉम यूएसए। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैसेजेस भी आपको शो हो रहे होंगे। दीज आर सम मैसेजेस ओवर देयर। वन इज फ्रॉम 29 मिनट्स अगो, 36 मिनट्स अगो। सो आप जो नंबर यहाँ से कलेक्ट करेंगे वो नंबर आप जब उस वेबसाइट पे लिखेंगे तो आपको जो ओटीपी है वो डेफिनेटली यहाँ पे रिसीव होगा ही होगा। ठीक है,
then what we are having, this is the one thing. Okay, then now the next thing is that how we got the um, mailing id to prank, to send the prank email to any single person. Now look at here, here we are having this one, दे आर वेरीफाइंग एज वेल। आप इस मेल को यूज करके, सपोज आप मेरे मेलिंग आईडी को भी यूज करके आप मेरे ईमेल आईडी से किसी को भी कोई चीज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लुक एट दिस साइड, दिस इज अ सेंड फेक एनोनिमस ईमेल ओवर देयर। सो वी आर, आई एम गोइंग टू पुट फ्रॉम नेम देन ईमेल देन टू ईमेल, और यहाँ से आप लिख के से सबमिट कर दें तो आपका जो मैसेज है वो इजीली उस पर्सन को सेंड हो जाएगा जिसको आप करना चाह रहे हैं। सपोज करें कि मैं यहाँ से कुछ भी लिख रही हूँ, सपोज आई एम राइटिंग दिस वन। ठीक है, मैं यहाँ पे ईमेल लिख रही हूँ कि मैं इस ईमेल से, सपोज दिस इज सम ऑल्टरनेटिव ईमेल, और मैं ये सेंड करना चाह रही हूँ इस नंबर पे। ठीक है, इस ईमेल डिटेल्स पे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ। अब आप ये देखिएगा कि मेरे मेरे ईमेल से किसी को भी आप मैसेज कर सकते हैं, दैट इज अ फेक मैसेज सिस्टम। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ भी डायल कर दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से करके आप इसको सबमिट करेंगे, जो आपका रिस्पेक्टिव पर्सन होगा जिसको आप सेंड करना चाह रहे हैं वो इजीली इसको गेट कर लेगा। ठीक है, ये वो साइट है कि आप किसी को भी फेक ईमेल सेंड कर सकते हैं। अब देखिए मेरी तरफ से अगर ईमेल जा रहा है तो, जबकि मैं नहीं सेंड कर रही, तो आप जो मेरा रिस्पेक्टिव पर्सन है वो तो यही समझेगा ना कि जो ईमेल मैंने शेयर किया है वो मेरी ही तरफ से आया है, जबकि दैट पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, दैट जो ईमेल मैंने शेयर किया है वो मेरी तरफ से नहीं आया, दैट कम फ्रॉम समवन एल्स, दैट कम फ्रॉम समवन एल्स। तो इससे आपका क्या होता है कि जो आप जो भी ईमेल शेयर सेंड करते हैं, जो आपके पास जो भी बंदा है उसको ईमेल मिल जाता है, और वो ईमेल जो होता है वो एक प्रैंक ईमेल होता है, वो आपका एक वैलिड ईमेल नहीं होता। तो आप किसी से किसी भी बंदे को इस तरह ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जबकि ये करना नहीं चाहिए, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। सो हाउ टू प्रिवेंट ईमेल स्पूफिंग अटैक। ईमेल स्पूफिंग आप बेसिकली यही है कि आप प्रैंक ईमेल किसी को भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कोई चीज रिसीव होती है, फर्स्ट वेरीफाई दैट, फर्स्ट कंफर्म दैट वेदर दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑथराइज्ड पर्सन और नॉट। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग अ पासवर्ड मैनेजमेंट ओवर हियर। अब आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हैं कि आपका पासवर्ड हैक हो गया है, या आपका ईमेल का जो पूरा सिस्टम है वो हैक हो गया है। जब वो हैक हो जाता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, जो आपने पासवर्ड सेट किए होते हैं दैट आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, दैट आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप पासवर्ड को ले रहे हैं, कोई भी पासवर्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें वो पासवर्ड आप लें जो कि आप इजीली रिमेम्बर भी कर रख सकें, जो कि आपको बार बार रिमेम्बरेंस की भी जरूरत ना पड़े, जो आपकी डेली लाइफ में होता है। सपोज आई लव माई फैमिली, आप इसको रिफ्रेश कर लें जिसमें आपके पास अपर केस लेटर भी हैं, लोअर केस लेटर्स भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो हमेशा वो पासवर्ड सेट करें जो आपको याद रखने की जरूरत ना पड़े, जो आपके डेली रोज के जो डेली बेसिस पे आप जो फेजेस यूज करते हैं वो आपके उस फेजेस से ही हो। तो एट द एंड एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करूं, जो आपके पास ओपन वाईफाई होते हैं। ठीक है, ओपन वाईफाई का क्या पर्पस होता है कि आपने देखा होगा कि आप उसको इजीली कनेक्ट कर लेते हैं अपने फोन में, जबकि दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ स्कैमिंग। क्या आपके किसी भी सिस्टम को हैक किया जा सकता है, वो आप जैसे ही वो पासवर्ड एंटर करते हैं या अगर वो ओपन है तो वो इजीली आपके फोन में कनेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी जो आपके पास ओपन वाईफाई होते हैं इंटरनेट के लिए, वो कभी भी आप उसको कनेक्ट ना करें अपने सिस्टम से। जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो आपका सिस्टम हैक हो जाता है, और जो हैकर्स होते हैं वो उस चीज को एकदम ग्रैब कर लेते हैं। सो इन चीजों से अवॉइड करें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और सेकेंडली ये है कि जब भी आपको कोई भी चीज ऐसी सस्पिशियस नजर आ रही है तो पहले कंफर्म करें, देन यू आर गोइंग टू गो अहेड ओवर देयर। विदाउट कंफर्मेशन किसी ईमेल को क्लिक ना करें, किसी ऐसी चीज को क्लिक ना करें जो कि आपके सिस्टम को हैक कर ले या आपके सिस्टम में वायरसेस क्रिएट करे। जब आप यूएसबी कनेक्ट करते हैं उसमें भी आप इस चीज को देखें कि जब आप यूएसबी कनेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या वो प्रोटेक्टेड हैं आपके सिस्टम के लिए, नहीं, अगर नहीं है तो आप उसको चेक करें। ठीक है, तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ओवर देयर। So this webinar is on the cyber security awareness. So these awarenesses are very much important while you are doing anything. Now we are having a question answer session. If you want to ask, you can ask anything that you want to ask. You can raise your hand or you can send the message on my
chat over there if you want to ask anything relevant to the webinar. तो बेसिकली इसका कंक्लूजन यही है कि आपके पास अपने सिस्टम को, अपने आप को सिक्योर रखने के लिए बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि आजकल बहुत स्कैमिंग्स हो रही हैं। अब लोगों के इतनी लॉस हो रहे हैं इन स्कैमिंग्स की वजह से। तो जब भी आपके पास कोई चीज सस्पिशियस नजर आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज मुझे हिट कर सकती है, तो आप उसमें बहुत केयरफुल होके चलें, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको डिस्पोजल ईमेल्स का बताया है वो, और रिसीव्ड एसएमएस का बताया है, कहीं पे भी कोई चीज मांगी जा रही है आप वो चीज यूज करें। आपके पास वो कह रहे हैं ईमेल डालें, तो अपना बिल्कुल अपना एग्जैक्ट ईमेल बिल्कुल प्रोवाइड मत किया करें। वो ईमेल प्रोवाइड करें जो कि टेम्परेरी पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, ईमेल्स का आपको पता है कि जैसे ही आपका ईमेल हैक होता है तो आपका सारा सिस्टम हैक हो जाता है, क्योंकि जो हमारे बैंकिंग साइड है, हमारी गवर्नमेंट साइट्स है, वो सारी हमारी ईमेल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, हमें मेल्स रिसीव होती हैं। तो ना अपना नंबर कहीं पे पुट करें, ना अपनी ईमेल आईडीज कहीं पे पुट करें, हमेशा फेक चीजें या टेम्परेरी चीजें यूज करें। मगर अगेन आई एम सेइंग दैट किसी भी ऑथराइज एंटिटीज में ये चीज को यूज मत करें। आपके पास गवर्नमेंट एरियाज हैं, आपकी बैंकिंग साइड है, डोंट आस्क फ्रॉम दिस फ्रॉम एनीवेयर। ओके, वी आर हैविंग अ क्वेश्चन, क्या हम कोई मैथमेटिकल टेक्निक यूज कर सकते हैं सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए? यस, वी कैन यूज अ मैथमेटिकल टेक्निक्स। आप देखें कि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास कुछ प्रोफेशनल चीज भी आती है, जिसमें हम कुछ कोड्स यूज करते हैं, कुछ इंक्रिप्शंस यूज होती हैं, कुछ डिक्रिप्शंस यूज होती हैं। ऑल आर क्रिप्टो सिस्टम इज इन्वॉल्व ओवर देयर। तो जब आप क्रिप्टो सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें कुछ बाइनरी डिजिट्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिससे आप इस सिस्टम को मैथमेटिकली भी सिक्योर कर सकते हैं, जो कि हमारी बेसिकली कोडिंग में आती है चीज। Our meeting is going to be end almost, so any other question? Any other question? तो आपका जो मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं उनको इसी तरह यूज कर सकते हैं कि आप कोडिंग्स यूज करें, आप क्रिप्टो सिस्टम यूज करें। सपोज मैंने एक हेलो मैसेज किया है, मैं उसको इनक्रिप्ट कर रही हूँ, जब वो दूसरा यूजर रिसीव करे तो उसे डिक्रिप्ट करे पहले। सो हियर मैथमेटिकल टेक्निक्स आर इन्वॉल्व ओवर देयर। सो एनी अदर क्वेश्चन?